Hello guys, welcome back to the channel. My name is Chandrika. Today I am going to share my UPSC prelim strategy. I have cleared GS ka cutoff 3 times back to back in 23, 24 and 25 prelims. So these are my mark sheets. You can see I have scored decently well above cutoff. Now based on my experience of clearing the prelims, I am going to share my strategy. So for prelims 2026, I have divided strategy into 6 pillars. So number one, obviously, is standard books. You have to do standard subjects like polity, economy, geography, environment, science, tech, international relations, mapping, modern history, ancient, medieval, and current affairs. So these many subjects you have to study. So I have created this order for you to study in this priority order. So first, focus on completing the polity part. Polity is a low-hanging fruit in prelims. I think it's important that you mark most of the polity questions right, especially those which are based on Lakshmi Kant. That you should not get wrong. Then polity. After polity, you can focus on economy. Again, economy questions. If your concepts are very clear, then you can easily solve static as well as current affairs question. A lot of times, current affairs does not come from any booklet in the market, but you can solve it if your concepts are clear. Then you can go for geography. In geography, again, conceptual clarity is very important. In recent times, you must have seen how climatological concept-based questions are asked. So focus on conceptual understanding of geography. Then we have environment, science tech, international relations, mapping, and then history and current affairs. So please read books in this order. Next pillar, after completing this, next most important pillar is PYQ. I think PYQ is the most important aspect of clearing prelims. I think nothing helps more than PYQ. I had done last 10 years ka PYQ from 2014 to 2024, and I would suggest please do it on your own because I didn't like any market ka booklet. The answers were not that great. Also, doing it on your own helps you to understand themes as well as you will learn some elimination techniques by observing the PYQs. So please do PYQ, last 10 years ka PYQ. I think no matter how many times, like how many books you read, if you at least focus on PYQ, there will be more chance of you clearing the exam. Now, third and most important thing is logical tricks. I think no topper knows more than 35 to 40 questions. I mean, even if you study for UPSC for like 10 years, you won't know more than 35 to 40 questions directly. So, rest of the 40 to 45 questions you have to solve based on logical elimination techniques. Now, this is not like tukka. You should learn these techniques by analyzing PYQs because PYQs से आपको पता चलेगा how UPSC sets the wrong option. वो आपको पता चलेगा. That's why I said कि आप खुद उसका एनालिसिस करना instead of spoon feeding पे डिपेंड नहीं रहना, खुद करना ताकि आपको ये समझ में आए. So third most important thing is logical tips and tricks. Fourth is very important, attempts. I mean minimum 80 questions you have to solve. Less than 80, less the chance of clearing this exam. If you see, most toppers have solved like 85, 90, 95 questions. Even I did the same. I think one time I attempted less than 80 and I was already out of race. So please do not go below 80 no matter how accurate you are. Go for at least minimum 80. I would suggest actually 85 questions. Then so attempt is very important. And fifth is tests. Again, give at least 10 full length tests in offline mode, like proper classroom mode. In my city, only Vision used to come to conduct offline tests. So I had given Vision का अभ्यास test. I think there are 3 tests जिसमें GS plus CSAT होता है एक ही दिन में. So it gives you an understanding about how you're gonna manage time. So very very important. Don't give it at home. Try to give it offline in proper classroom. So that is fifth pillar, and most important Achilles heel for many people is CSAT. If you do not clear CSAT, there is no point of getting highest mark in JS. This has happened to me in 2023. So you can see in 2023 I got 102 marks. So this is 102 marks, but I flunked CSAT. So don't do that. Please focus on CSAT. In CSAT, what you can do is focus on PYQ and practice. I think only way to feel secure about CSAT is by doing PYQ and practice lot of question papers. Now, these are the 6 pillars that you should focus. Read subjects in this order. Then focus on PYQ. Don't forget PYQs. Learn logical tricks. Attempt minimum 80, 85 questions. Then attempt test. And then focus on CSAT as well. Now, don't do CSAT at the end. At least 3-4 months before you should start, before prelims, you should start doing CSAT so that you feel a bit confident about it. Okay. Now, these are the 6 pillars. Now, I will discuss my book list. I think I tried to keep my book list small because you have to revise a lot of times. It's always better to have a small list. Let's begin. First is polity. In polity, I completely relied on Lakshmi Kant. I think it's the best book for static conceptual understanding. I know a lot of people say nowadays थोड़े अजीब questions पूछे जाते हैं, but I will still say Lakshmi Kant is best. Make short notes of it. Even though a lot of people say that Lakshmi Kant itself is like short notes, but I think you should make short notes for last minute revision. I mean, you cannot read like 600 pages, राइट. सो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए प्लीज़ शॉर्ट नोट्स बना लेना. मैंने अपने बनाए हैं, मैं स्कैन करके डाल दूंगी, बट इट विल टेक सम टाइम. देन डू PYQs अगेन. एंड इन करंट अफेयर्स इन पॉलिटी आई हैड डन PT 365. उसका इंडेक्स मैंने देखा और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ओनली
वही मैंने किया था, ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई हैड डन, बिकॉज अदरवाइज पीटीज भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन ब्रेन टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस. सो फोकस ऑन फर्स्ट कंप्लीटिंग लक्ष्मीकांत, रट्टा मारो उसका अच्छे से, एंड देन पीटी 365 में से सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं. नेक्स्ट इज इकॉनमी, अनदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. इकॉनमी में एनसीईआरटी आई हैड डन, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी. अगेन आई मेड शॉर्ट नोट ऑफ इट एंड उसी से मैंने फिर बार बार रिवाइज किया था. सो डू दिस एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट है. देन श्रीराम आईएएस का बुकलेट आई हैड डन, एंड फॉर एक्स्ट्रा सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स जो पीवाईक्यूज में भी पूछे गए थे, फॉर दैट आई हैड यूज दिस वेबसाइट कॉल इन्वेस्टोपीडिया. आई थिंक दे गिव रियली नाइस conceptual understanding of different economy topics. Then I had budget and survey. I think this first complete these two NCERT Shriram and then do budget and survey. ये अगर कोई भी कोचिंग का मटेरियल यूज़ कर लेना आप. The next is current affair. Again, I used PT 365, but I didn't do it end to end. I looked at index, whatever important topics I felt were there, वही मैंने सिर्फ किया. पूरा नहीं, कोई भी पीटी मैंने एकदम ब्लाइंडली एंड टू स्टार्ट टू एंड नहीं किया था. ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. एंड देन अगेन पीवाईक्यू तो हर जगह करना है. सो एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स, श्रीराम आईएएस, यूज इन्वेस्टोपीडिया फॉर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सेलेक्टिव टॉपिक्स फ्रॉम पीटीज. देन नेक्स्ट इज जोग्राफी. नाउ जोग्राफी इज अनदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. जोग्राफी में आप पहले एनसीईआरटी करना, ये तो सबको पता है, 6 to 11th वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आप मृणाल की वेबसाइट से वहाँ के जोग्राफी के स्लाइड्स डाउनलोड कर लेना. आई थिंक राज तनिल मैम ने वो बनाए हुए हैं. आई थिंक दे आर रियली गुड, तो आप उससे कर लेना. उसमें आप थोड़े डायग्राम्स वगैरह आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बेटर. और मुझे उसका वर्ल्ड जोग्राफी बहुत पसंद है. इट्स रियली गुड. सो फर्स्ट डू एनसीईआरटी एंड देन गो थ्रू मृणाल के जोग्राफी स्लाइड्स, वो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना. एंड देन अगेन पीवाईक्यू वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जोग्राफी इज एटलस, लाइक मैपिंग. आई थिंक डेली आप थोड़ा इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप देखते रहना. इट्स अ डेली थिंग, तो ऐसा नहीं कि एक दिन पूरा देना है, रोज़ थोड़ा थोड़ा देखते जाना. सो दिस इज जोग्राफी, एनसीईआरटी, मृणाल स्लाइड्स, मैपिंग. Fourth is environment. See, for longest time people used to rely on Shankar IAS, but I think in recent few years उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते. लेकिन फिर भी मैं कहूँगी आप उसका पीपीटीज पढ़ लेना. वो पीपीटीज आई थिंक यस डॉक्टर शिविन सर के वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो फ्री डाउनलोड के लिए अवेलेबल है. जस्ट गो थ्रू दोज पीपीटी फॉर क्रिएटिंग अ बेस फाउंडेशन फॉर दिस सब्जेक्ट. एंड देन बेस्ट वे इज़ पीवाईक्यू, बिकॉज इन रिसेंट टाइम्स उन्होंने ऐसे स्पीशीज़ के बारे में वो पूछते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उनका बिहेवियर वगैरह वो पूछते हैं. तो ऑब्वियसली देर आर सो मेनी स्पीशीज़, यू हैव टू डू लिमिटेड स्पीशीज़ जो पीवाईक्यू में रिपीट होते हैं. दे इवन आस्क लाइक लेट्स से वो पूछेंगे इनमें से कौन से इकाइनोडर्म्स है, कौन से स्पीशीज़ इकाइनोडर्म्स होते हैं. सो दिस यू कैन डू फ्रॉम पीवाईक्यू, से आपको पता चलेगा कौन से स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट इज मैपिंग. सो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, इन सब के मैप्स देख लेना. वो मैंने खुद बनाए हैं अपने, लाइक खुद बैठ के बनाए हुए. सो यू डोंट हैव टू डू इट, आप दूसरे हर जगह खुद नहीं करना होता है. सो आई विल शेयर माई मैप्स, मैंने बहुत अच्छे से बनाए हुए मैप इसके. यू जस्ट हैव टू ऐड, अगर कोई नया टाइगर रिजर्व ऐड हो रहा है तो दैट्स इट. सो डू दिस मैपिंग वाला पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने फोरम का करंट अफेयर ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे जो साइंस एंड टेक होता था मैंने वही किया था. अगेन पीटी 365 का इंडेक्स देख के मुझे जो इंपॉर्टेंट करंट इश्यूज़ लगते हैं, जैसे हमेशा बायोटेक्नोलॉजी में जीएम पे वगैरह काफ़ी बार सवाल आता है. सेमीकंडक्टर्स, जो करंट इश्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो देख लेना. अगेन पीवाईक्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, सो प्लीज़ डू पीवाईक्यू. देन सिक्स्थ सब्जेक्ट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस. इसका पीटी लेकिन मैंने पूरा पढ़ा था, छोटा ही होता है, आई थिंक 80 पेजेस होते होंगे. पीटी 365 देख लेना. इसका न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहना ताकि आपको पता चले इंटरनेशनल इश्यूज़ क्या चल रहे. जनरली आईआर में वो इंडिया या किसी और कंट्री से, इंडिया यूएसए का कोई नया इनिशिएटिव है वो पूछ लेते हैं, या फिर कोई प्लेस या कॉन्फ्लिक्ट जो न्यूज़ में है वो पूछ लेते. जनरली अफ्रीका में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, तो वहाँ पे कूप होता है तो उसके रिलेटेड पूछ लेते हैं. सो आई हैड डन पीटी 365, उसी से मैंने आईआर किया था. देन सेवेंथ इज़ एक्चुअली आईआर को आप वर्ल्ड जोग्राफी के साथ कंबाइन करो, मतलब वर्ल्ड जोग्राफी और आईआर काफ़ी ओवरलैप होता है, तो वो देख लेना. आयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको वर्ल्ड जोग्राफी भी हेल्प करेगा. सो दैट्स इट. एंड देन दिस इज एंशियंट मिडिवल, जो कि मेरा कोई इतना अच्छा नहीं था, तो बट आई हैड रेड न्यू एनसीईआरटीज. तमिलनाडु का ओल्ड एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, और ये जो आर्किटेक्चरल साइड से, सॉरी हेरिटेज साइड से यूनेस्को के, वो मैंने देख लिया था. एक्चुअली लास्ट टाइम मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, तो ये तो मैं रिवाइज नहीं कर पाई थी, तो आई हैड जस्ट डन पीटी 365. उसमें भी जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई नया यूनेस्को साइट्स ऐड हुआ है या कोई नई इंपॉर्टेंट साइट न्यूज़ में, वो बस देख लिया था. देन एट्थ इज़ मॉडर्न हिस्ट्री. ना मॉडर्न हिस्ट्री में आई थिंक स्पेक्ट्रम इज़ इनफ. नाउ देर विल ऑलवेज बी 1 or 2 क्वेश्चंस जो कि ऐसे रैंडमली नहीं, लेकिन कुछ और सोर्सेज से पूछेंगे. अब वो तो जाके आप नहीं पढ़ना है आपको. सो फोकस ऑन स्पेक्ट्रम, क्योंकि मोस्ट पीपल वोंट नो दोज क्वेश्चंस, तो सबको उतना ही आएगा जितना आपको आने वाला है. सो डोंट गो फॉर मेनी सोर्सेज जस्ट फॉर दैट 1 or 2 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है. एंड देन पीवाईक्यू तो करना है. सो इफ़ यू ऑब्जर्व, इन सारे सब्जेक्ट्स में एक थीम कॉमन है, विच इज़ पीवाईक्यू, तो वो तो बिल्कुल भूलना मत. नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स. अगेन आई थिंक यू डोंट नीड टू बी पैरानॉइड अबाउट करंट अफेयर.
आई नो लॉट ऑफ मार्केट में हज़ारों चीज़ें आती है, आपका दिमाग ख़राब हो जाता है इतनी सारी चीज़ें देख के, तो डोंट लाइक गो क्रेजी फॉर करंट अफेयर्स। आई थिंक अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है प्लस स्टैटिक क्लियर है ना, तो यू कैन आंसर इवन करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस। सो करंट अफेयर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ न्यूज़पेपर। डेली आपको करना है विदाउट फेल। इंडियन एक्सप्रेस कर लो या फिर द हिंदू कर लो। आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस नाउ डेज इज़ बेटर, या फिर आप अगर पहले से द हिंदू कर रहे तो कंटिन्यू दैट। सो डेली न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट मिस दैट, क्योंकि इट क्रिएट्स अ स्टोरी इन योर माइंड अबाउट डिफरेंट इश्यूज़। उससे क्या होता है कि आपको पीटीज़ पढ़ने में बहुत ईजी जाता है, एंड यू नो कि कौन से पीटीज़ में पीटीज़ इंपॉर्टेंट है और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सो दैट यू विल नो ओनली इफ यू हैड बिन फॉलोइंग न्यूज़पेपर। नाउ पीटी जब आप पढ़ोगे, सारे पीटी तो नहीं पढ़ सकते, याद भी नहीं रख सकते, क्योंकि 1000 आई थिंक 1500 पेजेस होते होंगे आई गेस। तो आई फोकस्ड ओनली ऑन फ्यू पीटीज़, लाइक साइंस टेक में पहले करती थी, देन इकोनॉमी, देन आईआर, फिर एनवायरमेंट में बहुत बल्कि हो जाता है, एंड पॉलिटी, कल्चर, सोशल इशू, ये तो मैं ऑलमोस्ट नहीं करती थी। माई फोकस यूज टू बी ऑन साइंस टेक, इकोनॉमी, आईआर, एनवायरमेंट एंड पॉलिटी, कल्चर। इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंडेक्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करने हैं। ओके, सो दैट्स हाउ आई यूज टू डू करंट अफेयर। आप कितना भी कर लो वो इनफ नहीं है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स एंड स्टैटिक क्लियर होगा तो यू कैन आंसर इवन करंट अफेयर का क्वेश्चंस। नाउ to keep this video short, I will upload a separate small video about how I had done PYQ analysis. वो आप प्लीज़ देख लेना बाद में, मैं इसके बाद ही डालूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग PSIR का सेक्शन भी। इसके पहले मैंने PSIR का सेक्शन ए कम्प्लीटली बताया है आपको, कैसे मैंने किया था ऑफ पेपर 1, एंड आई विल ऑल्सो शेयर माई CSAT, जो कि मेरा पहले 56 था, फिर मैंने 101 तक गई, तो आई विल शेयर दैट। So keep watching. Thank you for watching, and please subscribe to the channel. And yes, if you have any queries, comment down below. Thank you so much.